کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راز دلوں پر چلائیں۔ زبور 91 کی 5 آیت میں لکھا ہے، نہ تو رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے۔ میں نجات کی ہفتہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جسے ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم معجزات کو دیکھیں، نجات کو دیکھیں، تمام لعنتوں کو توڑیں گے، ان تمام شیطانی عملوں کو ناکام بنائیں۔ میں آپ سے شیطانی تیروں سے نجات کے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ انہیں بھیجنے والے کے پاس واپس بھیج سکتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو آج کے عنوان کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، جو کہ شیطانی تیروں سے نجات ہے، اور کس طرح ہم ان تیروں کو ان کے بھیجنے والے کے پاس واپس بھیج سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، روحانی دائرہ کار میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سے ہتھیار ہیں جو شیطان نے تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے پاس بہت سے ہتھیار ہیں جو کہ خاص طور پر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ راست بازوں کے خلاف استعمال کیے جا سکیں۔ خواتین و حضرات، بائبل مقدس دوسرے کرنتھیوں اس کے 10ویں باب میں کہتی ہے، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں۔ میں نے کہا لڑائی کے ہتھیار، اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ دوستو، آپ خداوند کی فوج میں شامل کیے گئے ہیں۔ جس لمحہ آپ یسوع کے پاس آئے، آپ کو شامل کر لیا گیا ہے، خدا کی فوج میں شامل کر لیا گیا ہے، اور ہر روز آپ کو ضروری تیار رہنا ہے ایک فوجی مہم کے لیے اپنے دشمنوں کے خلاف یسوع مسیح کے نام سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں، اگر ہم جنگ کی حالت میں ہیں، اگر ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اور کیونکہ شیطان نقل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے پاس بھی ہتھیار ہیں۔ اور ہتھیار کس لیے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہتھیار لڑائی میں، جنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس بدرو کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں یہاں کلام دے رہا ہوں اور شیطان نہیں چاہتا کہ میں یہاں کلام دوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کلام کے متعلق بات نہ کرو۔ برادر شہری، یہ بدرو آپ کو مار رہی ہے، اور بدرو اس کو مار رہی ہے۔ اچھا، تو میں یہی کلام دینا چاہتا ہوں، اور یہ بدرو میرے خلاف کلام دینے میں خلل پیدا کر رہی ہے۔ اور یہ جو بدروہیں ہیں، اور اچھا، اور اس بدرو کو وہاں اس کونے میں لے آئیں۔ مجھے اس پر کچھ وقت لگانے دو۔ اس کونے میں رکو، اس سے پہلے کہ میں کلام ختم کروں، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، تو یہاں سے جا نہیں سکتا، تو آگ کے اس دائرے میں ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے تو اس دائرے میں سے نکل نہیں سکتا۔ ابھی اسی وقت میں اس آگ کے دائرے میں تجھے رکھتا ہوں، یسوع کے نام سے۔ آپ توجہ نہ دیں، یہ اب آپ کو تنگ نہیں کرے گا، فکر مت کریں۔ ابھی خواتین و حضرات، ہم ایک ایسی اندیکھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا نام ہمیشہ جلال پائے۔ جب وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا تو اس نے ہمیں ایک خوبصورت اختیار دیا تاکہ ہم فتح حاصل کرنے والے بنے۔ اس نے ہمیں پاک روح کی طاقت دی ہے تاکہ ہم بادشاہت کے اصولوں کو نافذ کریں، تاکہ اس قابل ہوں پاک روح کے قوانین کو اس دنیا میں نافذ کر سکیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ چرچ میں موجود لوگ یہ جانیں کہ آپ اس زمین پر قانون نافذ کرنے والے افسر ہیں۔ آپ کو یہ اختیار یسوع مسیح نے دیا ہے۔
और कलीसिया को भी ये कानून नाफज करने की ताकत दी गई है और कलीसिया को भी कानून नाफज करने का इख्तियार दिया गया है कि जहां कहीं रियासत में खिलाफ वर्जी की जाए तो कानून नाफज करने वाले अफसर का ये फर्ज है कि वो बादशाहत के कानून को नाफज करें। क्या मैं ये आपको ये बात समझा पा रहा हूं? आज हम इस हफ्ते इसलिए यहां आए हैं ताकि कानून नाफिज कर सकें, क्योंकि यहां पर खिलाफ वर्जी करने वाले मौजूद हैं। कुछ मुजरिम हैं, कुछ लोगों ने रियासत के खिलाफ बगावत की है, उन्होंने बादशाहत के कानून के खिलाफ बगावत की है और हम खुदा के कानून नाफिज करने वाले हल्के में शामिल हैं। हमें खुदावंद के नुमाइंदे बनाया गया है, हमें हथियार दिए गए हैं, हमें अपनी हिफाजत करने के लिए ढाल दी गई है, हमें गिरफ्तार करने की ताकत दी गई है, हमें कैद करने की ताकत दी गई है। ओ लॉर्ड, शैतान ये बात जानता है कि चर्च कानून नाफिज करने वाली एक जगह है और जैसा कि हम जानते हैं कलीसिया खुदावंद की हामी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान के असल हथियार तमाम रास्तबाजों के खिलाफ हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के तीरों की सूरत में हैं। ज़बूर 11 की 2 से 4 आयत में पढ़ा है, क्योंकि देखो शरीर कमान खींचते हैं, वो तीर को छल्ले पे रखते हैं ताकि वो अंधेरे में रास दिलों पर चलाएं। यहां पर तीर को छल्ले पर रखने का मतलब अंधेरे में तीर चलाना है। बदरूहों का दायरा कार अबलीसी कुव्वतों का दायरा कार है और अबलीसी कुव्वतें अपने तीरों को चलाती हैं और दाऊद आगे चलकर भी यही बात कहता है। ज़बूर 91 की 5 आयत में पढ़ते हैं, तू न रात की हैबत से डरेगा न उड़ने वाले तीरों से। क्या तुमने ये देखा है? दाऊद रूहानी जंग को समझता था। जो तीर दिन के वक्त उड़ते हैं क्या होते हैं? जब शैतान की तरफ से कोई तीर आपकी तरफ भेजा जाता है। आप में से कितने लोग ये बात जानना चाहते हैं क्या होता है जब एक तीर आपको छूता है? सबसे पहले एक तीर जो आपको छूता है शायद आपके अंदर दाखिल हो। अगर उसके पास कानूनी बुनियाद है या अगर दरवाजा खुला है तो वो तीर आपके अंदर दाखिल हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो तीर आप पर से अपना निशाना खो दे और शायद किसी और को लग जाए। मैं वो 3 चीजें एक बार फिर दोहराता हूं। जब वो तीर चलाते हैं, और मैं आपको तीरों की मुख्तलिफ किस्म की मुतालिक बताऊंगा जो वो चलाते हैं, आप किस तरह से खुद को, अपने खानदान को, अपने बच्चों को और अपनी मिनिस्ट्री को इन तीरों से बचा सकते हैं। जब वो तीर चलाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि वो तीर चलाते हैं, जब वो अंधेरे की खुफिया जगहों से तीर चलाते हैं, शायद वो आपको ना लगे और शायद वो तीर आपको लगे और शायद वो आप पर ना लगे। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब वो आपकी तरफ तीर चलाता है, वो निशाना खो देता है और किसी दूसरे शख्स को लग जाता है। बाइबल मुकद्दस मिसाल 11 बाब 8 आयत में बताती है, सादक मुसीबत से रिहाई पाता है और शरीर उसमें फंस जाता है। और जब शैतान सादिक पर हमला आवर होता है और शैतान की आपकी जिंदगी में कोई बुनियाद नहीं होती, तो जब वो तीर चलाता है शैतान निशाना खो देता है। लेकिन जो कोई भी आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके खानदान में है, दरवाजे को खुला देखकर वो तीर आपकी बजाय उन्हें लग जाता है। यही वो बात है जो बाइबल हमें बताती है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं? बाइबल इस बात का ऐलान करती है कि ये तीर शैतान की तरफ से आते हैं, शैतानी कुव्वतों से आते हैं, और जब वो तीर आपसे निशाना खो देता है और किसी और को लग जाता है, क्योंकि खुदावंद आपकी हिफाजत करता है और खुदावंद ने किसी को आपके सामने खड़ा कर दिया है ताकि वो तीर खुद पर ले सके। मैं खुदावंद से दुआ करता हूं आपके सामने किसी को ला खड़ा करे ताकि वो तीर उस पर चले। खुदावंद आपके बच्चों की हिफाजत करे और किसी और को खड़ा करे कि वो उनकी हिफाजत करे और वो उसके तीर को ले ले। और मैं आपके लिए दुआ करता हूं, और जब शैतान आपकी तरफ निशाना बांधे
تو آپ کے سامنے شیطانی قوتیں آ جائیں اور وہ اس تیر کو لے لیں. میں آپ سب سے کہتا ہوں، آؤ مل کر کہیں آمین. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، عیسائیاہ کی کتاب اس کی 43 باب 4 آیت میں کہتی ہے، تو میری نگاہ میں ہے، بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی. یہ دیکھیں، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور امتیں دے دوں گا. کیا آپ جانتے ہیں کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کی بجائے آپ بھی مر سکتے ہیں ایک دن؟ لیکن جب شیطان نے آپ کی طرف موت کا تیر چلایا، کیونکہ آپ خداوند کی نگاہ میں بیش قیمت ہیں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لا زوال محبت کرتا ہے، اس نے آپ کی زندگی کی بجائے کسی اور کی زندگی دے دی. اس نے آپ کی جگہ کسی اور کو سامنے لا کھڑا کیا تاکہ وہ اس تیر کو لے سکے. میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی شیطان آپ کی طرف پھینکے گا وہ نشانہ کھو دے گا اور وہ کسی اور کو لگے گا. موت کا وہ تیر جو آپ کی طرف پھینکا گیا ہے وہ نشانہ کھو دے گا، کوئی اور قتل ہوگا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. کیا میں بائبل سے بات کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیا یہ بائبل مقدس ہے؟ جی ہاں، یہاں بہت سے تیروں کی بات ہے. ہم لوگ جو افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم یہ باتیں جانتے ہیں، صحیح؟ آپ یہ چیزیں جانتے ہیں. کیوں ہے؟ اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں شیطانی میدان میں اور شیطانی ہتھیاروں کے بارے میں متعلق بات کروں. آپ کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہتھیار تیر ہے، اور یہ تیر مختلف شکل اور مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، یہ تیر روحانی تیر ہیں، وہ دن کے وقت اڑتے ہیں اور یہ شیطانی قوتیں انہیں چلاتی ہیں. ان تیروں کو بدکار چلاتے ہیں. ایسے بہت سے شیطانی تیر ہیں جو ہمارے خلاف چلائے جاتے ہیں. میں آپ کو اس قسم کے کچھ شیطانی احساسات اور تیروں کے متعلق بتاتا ہوں. غصے کے تیروں کے متعلق بتاتا ہوں. لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہوش کھو دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک تیر ہے جو ان کے خلاف چلایا گیا ہے، اور وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. یہ شیطانی غصے کے تیر ہیں. مایوسی کے بھی تیر ہوتے ہیں، اور ناکامی کے بھی تیر ہوتے ہیں. اسی طرح نا امیدی کے بھی تیر ہوتے ہیں، اور ہر قسم کی بیماریوں کے بھی تیر ہوتے ہیں، اور ذہنی پاگل پن کے بھی تیر ہوتے ہیں. خودکشی کے رجحانات کے بھی تیر ہوتے ہیں. ہر قسم کی بری عادتوں کے تیر ہوتے ہیں. ہوس کے تیر ہوتے ہیں، جنسی ہوس کے تیر ہوتے ہیں، خواتین کے امراض کے متعلق تیر ہوتے ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، مسائل کے تیر ہوتے ہیں، الجھنوں کے تیر ہوتے ہیں، آن دہانی موت کے تیر ہوتے ہیں، آوارہ زندگی کے تیر ہوتے ہیں، اور پھر طلاق کے تیر ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح حادثے کا شکار ہو جانے کے تیر ہوتے ہیں. پریشانی کے تیر ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. جب وہ آپ سے ملتے ہیں بغیر کسی وجہ سے نفرت کرتے ہیں. میں آج کلیسیا کو بتانا چاہوں گا، نفرت کی تیر کی علامت، ناپسندگی کے تیر کی علامت، شاید اس شخص کو نہ جانتے ہو، وہ شخص آپ کو نہ جانتا ہو، لیکن جس لمحہ وہ آپ سے ملتا ہے وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے. یہ ہے شیطانی تیر، شیطان کی سلطنت کے تیر. اور اسی طرح عذاب کے بھی تیر ہوتے ہیں. وہ آپ کے خاندان کی طرف لعنتوں کے تیر چلاتا ہے، وہ ازدواجی ناکامی کے تیر چلاتا ہے، وہ کاروبار میں ناکامی کے تیر چلاتے ہیں. میں یہاں خدا کے مسا کو محسوس کر سکتا ہوں. ان تمام تیروں کے خلاف کچھ ہوگا. منسٹری میں ناکامی کے تیر، نا امیدی کے تیر،
गुर्बत के तीर और सुस्ती के तीर और इसी तरह रुकावटों के तीर और इसी तरह शैतानी ताखीर के तीर। लेकिन आज इन तीरों की वजह से जो भी रुकावट है ये अपने भेजने वाले के पास वापस चले जाएंगे। आज इन तीरों की वजह से जो नाकामी है मैं इन तीरों को वापस भेजता हूं, भेजने वाले के पास वापस भेजता हूं। ऐसे तीर भी होते हैं जो आपकी मदद करने वाले लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। आप गौर करें कि ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा लोगों से मदद की तवक्को रखते हैं, नौकरी हासिल करने में उनकी मदद करें, लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कोई आपकी मदद नहीं करता। और जब आप सोचते हैं कि आपके पास एक मददगार है और साथ ही वो अपना जहन तब्दील कर लेते हैं। तीर आपके मददगारों को आपसे दूर कर देते हैं। मैं यहां आप सबसे बात कर रहा हूं, मैं यहां पर तालीम देने आया हूं, मैं आपकी आंखें खोलने आया हूं रूहानी दायरा कार में क्या हो रहा है इस मिनिस्ट्री के लिए। खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने इस मिनिस्ट्री का एक मकसद रखा है, दुल्हन यानी कलीसिया को तैयार करना है। आप तैयार होंगे खुदावंद की कुव्वत से, आप मसा होंगे खुदावंद की कुव्वत से, आप कलीसिया का सर होंगे जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, ना कि दुम। मैं यहाँ सब लोगों से मुखातिब हूँ। आप तैयार रहे गालिब आने के लिए उन पर जो आप पर गालिब थे, फतह हासिल करने वालों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपने दोस्तों और साथियों को बताइए, हे, पड़ोसियों से कहिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत हुआ बहुत हुआ। कहिए हा, कहिए हे। ठीक है, आप समझ गए। ये तीर तरक्की की बजाय नाकामी की तरफ, और दूसरे लफ्जों में आप अकेले ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता हैं और हकदार हैं। यहां पर कोई एक और भी मौजूद है जिसने 2 हफ्ते पहले वो नौकरी शुरू की है और अचानक से उन्होंने वादा किया आपको तरक्की देने के लिए, लेकिन जब आपको देने का वक्त आया तो उन्होंने किसी और को दे दिया और आप कह रहे हैं और ये क्या हुआ, मैं तो यहां 10 सालों से हूं, मैं तो यहां 15 सालों से हूं, मैंने अपनी कमर तोड़ ली है, मैंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है और इस शख्स को आए हुए यहां पे 2 हफ्ते हुए हैं और उन्होंने इसका दर्जा बढ़ा दिया ताकि वो मेरा हकम बने। ये वो तीर है जो नाकामी का तीर है। लेकिन आज मैं यहां एक नबूवत करता हूं, ये जो तीर हैं आज हम इन्हें वापस भेजेंगे। आज ये तीर वापस भेजे जाएंगे, वापस भेजे जाएंगे, ये भेजने वाले के पास वापस भेजे जाएंगे। और यहां कोई कह रहा है इनको वापस भेज दिया जाए, इनको वापस भेज दिया जाए। नाकामी के तीर। क्या आपके पास तजर्बा है या ऐसे किसी शख्स को जानते हो जो तरक्की का हकदार था? मैं बात कर रहा हूं, कंपनी के लोगों ने आपकी तरक्की के कागजात तैयार कर लिए थे, क्या आप जानते हैं? और अगले ही दिन जब आप काम पे आए और किसी ने कहा आपको निकाल दिया गया है। यही वो तीर हैं मेरे बहनों और भाइयों, माली परेशानी और शर्मिंदगी के तीर और सिकाते हमल के तीर। हमल के तीर से लफ्जों में जब कोई औरत हामला होती है तो वो पहले दुआ करती है और जब वो हमल जाया हो जाता है वो दोबारा हामला होती है, हमल खो देती है, फिर हामला होती है, हमल खो देती है। कुछ लोग तो 8 से 10 बार अपना हमल खो देते हैं और जब तक खुदावंद यीशु मसीह इस मसले को खत्म नहीं करता, ये वो तीर है जो बयान नहीं किए जा सकते। ये रूहानी अंधेपन के तीर हैं। अजीज बहनों और भाइयों, ये बच्चों पे हमले के तीर हैं। ये आपके बच्चों पे हमला करते हैं। ये जो तीर हैं जो गलत ताल्लुकात और रिश्ते बनाते हैं, ये तीर जो आपको मजबूर करते हैं गलत शख्स से ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या मैं बात कर रहा हूं? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में आप कहें मैंने इस शख्स से किस तरह राब्ता कायम किया, इस रिश्ते में से निकलना कैसे है, इस राब्ते को खत्म कैसे करना है? तीर, गलत राब्तों के तीर। शैतान इन तीरों को इस्तेमाल करता है, जैसा कि मैंने कहा है। उन लोगों से राब्ते होते हैं जो मदद की बजाय आपको मायूस करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लोग आपकी तरक्की की बजाय आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन आज जिस भी तीर ने आपको गलत रिश्ते के साथ जोड़ कर रखा है, मैंने उस राब्ते को खत्म कर दिया है।
मैंने उसे आग से भस्म कर दिया है, मैंने उसे खत्म कर दिया है। कोई आप में से कहे यीशु मसीह के नाम से मैंने उसे खत्म कर दिया है, मैंने उसे खत्म कर दिया है। आप में से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं जिसको शैतान ने जकड़ा हुआ है, आज इन रिश्तों को खत्म कर दें, आज शैतान के रिश्तों को खत्म कर दें। मैंने आपको इन राब्तों में से निकालना है, मैंने शैतान के राब्तों में से आपको निकालना है। आज अपनी निजात को कबूल करें, आज अपनी निजात को कबूल करें, आज उन गलत रिश्तों से आजाद हो जाएं, आज अपनी निजात कबूल करें यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तेरा शुक्र हो, शुक्र हो। ये जो तीर हैं सब मायूसी के, ये तीर खत्म होने वाले हैं। आप तकरीबन वहां तक पहुंचने वाले हैं। क्या आप इसका जायका चख चुके हैं? हां, आप इसे महसूस कर सकते हैं। हां, आप वहां पहुंच जाते हैं और फिर कुछ हो जाता है, आप वहां पहुंचकर भी नहीं पहुंच सकते। इसे मायूसी का तीर कहते हैं। आप रुकावट अबूर करने वाले होते हैं और कुछ हो जाता है। लेकिन आज जैसा कि खुदावंद ने कहा है, आज का दिन निजात का दिन है और हमें खुशी मनानी चाहिए और खुश होना चाहिए। आज कोई शख्स इस खुशी को हासिल करेगा, आज कोई शख्स खुशी मनाएगा। ये जो कुछ नाकामी के तीर हैं जो आपको मायूसी के दहाने पे ले आए हैं, वापस चलाए जाएंगे, वापस चलाए जाएंगे उस शख्स की तरफ जिसने इनको भेजा है। कोई शख्स कहेगा रूह की आग, आग, रूह की आग। यस यस, आमीन। अपने पड़ोसी से कहिए, आप पहुंच चुके हैं लेकिन आपका हिस्सा नहीं है। आप अपने साथ के दूसरे पड़ोसी को बताएं कि आप वहां पहुंच चुके हैं लेकिन आप वहां नहीं हैं, यह आपका हिस्सा नहीं। साथ वाले से कहें आप बहुत करीब हैं लेकिन अब भी आप बहुत दूर हैं, यह आपका हिस्सा नहीं है। लेकिन आज जैसे ही आप रुकावट अबूर करने के करीब आते हैं, आप उसे हासिल करेंगे और खुश होंगे। ये जाहिर होगा, ये जाहिर होगा, ये जाहिर होगा, ये जाहिर होगा। रुल कुछ जाहिर होगा, रुल कुछ जाहिर होगा, रुल कुछ जाहिर होगा, रुल कुछ जाहिर होगा, जाहिर होगा, जाहिर होगा, जाहिर होगा, जाहिर होगा, जाहिर होगा। पाक रूह का मसा सब पर जाहिर होगा, पाक रूह का मसा सब पर जाहिर होगा, जाहिर होगा, जाहिर होगा यीशु मसीह के नाम में। यस, ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, ओ खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, हालेलुया, ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। अब हमें इन शैतानी तीरों का सामना किस तरह करना है? ये जो शैतानी तीर हैं, अब हमें इन तीरों का सामना किस तरह करना है? क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि वो इन तीरों को चलाएंगे, लेकिन ये शैतानी तीर आपको नहीं मार सकता। हां, जो कोई भी इस पैगाम को आज सुन रहा है, मैं आप सब पर अपना हाथ बढ़ाता हूं। आज के बाद जो भी तीर वो आपकी तरफ चलाएंगे वो पाक रूह की आग से भस्म हो जाएगा। मैंने कहा कि वो आग से भस्म हो जाएगा और वो आपकी बजाय किसी और को लगेगा और वो पाक रूह की आग से भस्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हां, अब हम इन तीरों का सामना कैसे कर सकते हैं? शैतानी तीरों का, बदरूहों के तीरों का। सबसे पहले नई पैदाइश का तजर्बा। इसके बगैर आप इन तीरों से नहीं निपट सकते। नंबर 1, आपको नए सिरे से पैदा होना है। नंबर 2, आपको रूह कुद्स से भरना है। यह हकीकत है। देखिए, मैं आपको पानी के बपतिस्मा की बात नहीं कर रहा। यह पानी के बपतिस्मा की बात नहीं, बल्कि पाक रूह का मसा मसीह में आपकी पहचान है। मसीह की मौत के बाद जी उठने की निशानी है। यह कोई ताकत का बपतिस्मा नहीं है। हमें और आपको ताकत के बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, पाक रूह की आग की जरूरत है। कोई कहना चाहेगा पेंतीकोस्त की ताकत, कोई कहेगा पेंतीकोस्त का बपतिस्मा। पेंतीकोस्त की आग, पेंतीकोस्त की वो ताकत जो मौत को मार सकती है, तबाह कर देने वाली ताकत, नेस्तो नाबूद करने वाली ताकत, बदरूहों को खत्म करने वाली ताकत, ताकत जो हुक्म दे, तीरों को वापस भेजने की ताकत। हां, नंबर 3, आपको यह फन सीखने की जरूरत है। दवाई या जंगजू बनने की जरूरत है। हां, देखिए, बाज़ औक़ात आपको दुआ करना सीखना जरूरी है।
अपने बिस्तर पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। हाँ, हाँ, कोई कह सकता है नहीं? ओह खुदावंद, आपको दुआ सीखने की जरूरत है कि कैसे दुआ की जाए। एक खादम की तरह आपको इस तरह दुआ करने की जरूरत है जैसे आप होश में नहीं हैं। आपको सीखने की जरूरत है कि दुआ कैसे की जाए। ऐसी दुआ जो मौत को जिंदगी में तब्दील कर दे। जो कोई मर रहा हो उसको जिंदगी की जरूरत है। हमें दुआ करने की जरूरत है ताकि बंधन टूटे और जिंदगी आजाद हो। अगर आपका पड़ोसी मर रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी कुछ और वजूहात हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक दिन क्या हुआ, कुछ साल पहले हमने एक ज़ियाफ़त तैयार की थी। ये नए साल का खाना था और इसके साथ नए साल की इबादत भी। मैं आमतौर पर नए साल में कुछ ऐलानात करता हूं। उस वक्त हमारा चर्च कुछ दूर था। जिस लम्हे हम इस जगह पर आए, चीजों को अभी देख रहे थे। हम सिर्फ अपने खुदावंद की खिदमत करना चाहते थे। लेकिन अगले हफ्ते जब हम चर्च गए, उसी हफ्ते हमने चर्च के सामने देखा, वहां पर कटी हुई मुर्गी पड़ी थी। हमने देखा खून पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई थी, सांप पड़े हुए थे, अंडे के छिलके और बहुत कुछ पड़ा हुआ था, मुर्गी के सफेद पर और ऐसी और भी बहुत सी चीजें। ओके, उस साल मैंने कहा बहुत हुआ। जो कोई भी ये कर रहा था वो यहां पे बहुत अरसा से ये सब कुछ कर रहा था, बहुत बहुत वक्त से। और वो जगह घेरे हुए थे। आए कुछ और अच्छी जगह देखते हैं, आए सब मिलकर दुआ करते हैं ताकि इन चीजों से छुटकारा पा सकें जो कि मजीद चल रही हैं और मसाइल पैदा कर रही हैं। इन तमाम चीजों को अब इस जमीन पर मजीद नहीं रहना चाहिए, वो बहुत वक्त से इस जमीन पर हैं। तो उस साल मैंने इन तमाम चीजों को खत्म करने का ऐलान किया दुआ के जरिए, ताकि वो बंदा मौत का मजा चखे उस शख्स पर। अगले साल में, हां, जनवरी पहली तारीख आई, जनवरी की दूसरी तारीख आई, जनवरी का पहला हफ्ता गुजर गया, जनवरी का दूसरा हफ्ता गुजर गया और मुझे एक वजीर की तरफ से कॉल आई। उसने कहा बाप, उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा आपको याद है वो शख्स जिसकी चर्च के साथ दुकान थी, वहां पे एक मैकेनिक की भी दुकान थी? मैंने कहा हां। आपको वो ऐलान याद है जो आपने 31 दिसंबर को किया था? सच कहूं तो मुझे वो याद नहीं था। उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने क्या कहा था। आपने कहा था कि जो कोई भी ये कर रहा है, ये साल, नया साल, इस जमीन पर उसका आखिरी साल होगा। उसने कहा अंदाजा लगाएं उस दुकान के मालिक के साथ क्या हुआ। आज मुझे एक फोन कॉल आई कि वो मर गया है। मैंने कहा हां? उसने कहा हां, वो एक झूले पे चढ़कर दीवार पर कुछ ठीक कर रहा था और वो झूला टूट गया। वो वापस गया और उसका सर किसी चीज से टकराया और वो मर गया। उस दिन के बाद मरी हुई मुर्गियां नहीं थीं, मजीद खून भी नहीं था, मजीद अंडे नहीं थे, मजीद सांप नहीं थे। मैं हैरान था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। मैंने कहा था कि जो कोई भी ये कर रहा है वो ज्यादा देर जमीन पर नहीं रहेगा। मुझे उनकी मदद करने की जरूरत थी। मैंने कहा मुझे उस शख्स की मदद करनी चाहिए और पूछा वो तीरों को मेरी तरफ भेज रहे हैं।
جب آپ اعلان کرتے ہیں اور ان تیروں کو واپس بھیجتے ہیں تو وہ جہاں کہیں بھی ہیں موت ان پر آ پڑتی ہے۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا پڑوسی مر رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے مالک یا اپنے ساتھ کام کرنے والے کے متعلق سنیں کہ وہ مر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے کسی خاندان کے فرد کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ آئیں سب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ہر کوئی۔